afternoon, everyone. Memories are always invisible to eyes but can be felt with heart. A very good afternoon to one and all present here. We hope you are safe and pink in health. I, Tanya, on behalf of Alumni Association, Janki Devi Memorial College, extend the warmest welcome to our wonderful audience for today's national webinar on polycystic ovarian disease (PCOD) in adolescents, organized by Alumni Association in collaboration with Forum for Democracy. The Alumni Association of Janki Devi Memorial College fosters a spirit of belonging and pride by connecting alumni to their alma mater. We believe that a lifelong relationship exists between alumni and the college. Alumni Association of JDMC is committed to keep the alumni informed and involved with various activities such as seminars, webinars, workshops, etc. on pertinent issues. Thus, we are organizing today's webinar on PCOD. The aim of today's webinar is to spread awareness about PCOD. PCOD is a major ailment concerning a huge chunk of young females in India presently. A person may be lean or has clear skin but still suffer from PCOD. This is because it is an endocrine disorder affecting several systems in the body. Uncontrolled PCOD can lead to numerous problems such as difficulty in conceiving and increased risk for early onset of type 2 diabetes. In order to understand its symptoms, causes, and treatment, Alumni Association has collaborated with Forum for Democracy for this webinar. Forum for Democracy is a non-profit and independent non-governmental trust. Its mission is to help promote dignity and betterment of life of citizens in Indian democracy. The trust has tax exemption under Section 12 and 83 of Income Tax Act. It is also registered with NITI Aayog and is empaneled with Delhi Commission for Protection of Child Rights. Forum for Democracy is tirelessly working with multiple partners like institutions, government agencies, and civil society organizations for empowerment of youth, women, children, and elderly in community. The trust has been successfully running projects and women's empowerment through livelihood generation programs, as well as reproductive health, menstrual hygiene management, and maternal and child health. The vision of Forum for Democracy is to work towards the betterment of citizens. Some of the partners with whom organization has collaborated are University of Delhi, Ashoka University, Tata Trust, Rotary International, DCPCR, among many others. We are thankful to Principal Ma'am for her constant support and an encouragement, and we welcome her in absentia. Professor Swati Pal, Principal of Janki Devi Memorial College, University of Delhi, is a Charles Wallace Scholar, 1997 and 2008, John McGrath Theatre Studies Scholar, 2005 at Edinburgh University. She is the first Asian to receive the John McGrath Award, author of several books on theatre, creative and academic writing. Several of her newspapers articles articulate her views on education and her research in drama. She has been Vice President of the Indian Association for Commonwealth Literature and Language Studies and an executive body member of the Indian Association for the Study of Australia. She has presented a number of papers at both national and international conferences, recipient of several awards, and she also writes poetry. I would now like to welcome speaker for today's session, Dr. Anjana Khare. Dr. Anjana Khare is a doctor at Medanta Hospital, Lucknow. Prior to Medanta Hospital, she has also worked with New Delhi Railway Hospital, Delhi, Northern Railway Hospital, Lucknow, and St. Joseph Hospital, Lucknow as a resident in obstetrics and gynecology. Northern Railway Hospital, Lucknow as a resident in medicine. Northern Railway Hospital, Delhi as an ADM. While on one hand, people across India and around the globe were largely confined to their homes, with businesses and educational institutions all shut down in an attempt to contain the virus, and on the other hand, doctors, healthcare workers, and medical staff members were leading the battle against COVID-19 from front. Dr. Anjana Khare
Khare is also one of the heroes who served their patients during the pandemic and still continues to deliver high quality care to all patients. The nation is indebted to her. Dr. Anjana is also actively associated with Forum for Democracy. I would now request Dr. Anjana Khare, over to you, ma'am. Your internet connection. Hello, can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. विनायक करो. Hello, Namaskar. I am Dr. Anjana Khare from Lucknow. First, I would like to thank FFD and Janki Devi Memorial College Alumni Association for inviting me to present webinar on the topic PCOD. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि PCOD कोई बीमारी हम नहीं मानते. PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है and it is more common in urban population, young girls and women. It is less common in village girl because आज भी village girls बहुत ज़्यादा physical activities करती हैं and और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं. They are eat more organic food. So उनमें ये बीमारी या जो ये लक्षण हैं ये कम पाए जाते हैं. But ये जो है problems ये urban population में ज़्यादा है. So हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कॉज है, क्या डेफिनेशन है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं एंड फाइनल क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं इस सिंड्रोम के. तो जैसा कि मैंने बताया कि PCOD इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. और अगर आप किसी भी यंग गर्ल को या फीमेल को आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है एंड बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है उसका और चेहरे पर बहुत बाल आ रहे हैं या एक्ने हो रहा है या उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है या कोई यंग लड़की है, शादीशुदा है, यंग कपल है, कुछ दिनों की कोशिश के बावजूद वो कंसीव नहीं कर रही है, तो यू शुड बी वरीड अबाउट हर कि यू शुड गिव सिंपैथी कि ये शी नीड्स मेडिकल अटेंशन and she may be the victim of PCOD. आज मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. दैट इज इसका क्या डेफिनेशन है, इसके क्या इंसिडेंसेस हैं, क्या कॉज है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और फिर फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं. PCOS and PCOD is the same thing. PCOS is a syndrome जिसमें कि एमेनोरिया, मेंसेस की कंप्लेन हो जाती है, काफी दिनों तक मेंसेस नहीं आता, दिस इज कॉल्ड एमेनोरिया. देन हिर्सिटिज्म जिसमें कि आपके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, मेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें थिक हेयर हो जाती हैं गर्ल्स को, लेडीज को. देन ओबेसिटी, बेसिकली ट्रंकल ओबेसिटी, क्योंकि ये जो है मेनली बेली पे इसका फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और अगर अल्ट्रासाउंड कराएं हम उनका तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन ओवरीज होती हैं उनकी. तो ये इट इज ए कॉम्प्लेक्स फीचर इस सिंड्रोम में होता है, इसलिए हम इसे सिंड्रोम कहते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल कंप्लेन बट इट्स अ सिंड्रोम. और इसमें चूंकि मेल हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सो ये ओवरीज की फंक्शंस को भी इंटरफेयर करती हैं और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन, टोटल एंडोक्राइन सिस्टम को एंड देन फाइनली मेटाबॉलिक सिस्टम को भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व करती हैं, अफेक्ट करती हैं. अब हम इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं PCOS के. देखिए, हेयर का लॉस हो जाता है, आपके हिर्सिटिज्म मीन्स मेल टाइप हेयर ग्रोथ ऑन फीमेल फेस एंड बॉडी. देन पेल्विक पेन हो सकता है, ओवरवेट हो जाता है, एक्ने होते हैं चेहरे पे, इरेगुलर पीरियड्स हो जाती है. इन सब के कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है एंड हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगर हम टेस्ट कराएं तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है. तो हम कब कहेंगे कि किसी भी महिला को PCOS है? तो PCOS के लिए अगर 3 or 4 क्राइटेरियाज में से भी अगर 2 भी है फीमेल के
शरीर में, तो हम कहेंगे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी भी लेडी जो भी इसको लगता है कि कुछ कंप्लेन्स हो रही हैं, और अल्ट्रासाउंड में अगर हम देखते हैं कि 10 से 12 अगर उसके सिस्ट हैं, तो और उसके जो डायमीटर्स हैं फॉलिकल के, वो 2 से 9 तक के डायमीटर्स हो रहे हैं, मिलीमीटर के डायमीटर हैं, और ओवेरियन जो वॉल्यूम है वो भी लार्ज हो जाता है, ओवरी का साइज भी बड़ा हो जाता है। देन उसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती है, ओलिगोएमिनोरियाज और एनओवुलेशंस हो जाता है। एंड अगर साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोनिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, तो फिर हम कहते हैं कि अगर इन तीनों में से अगर 2 भी सिम्टम्स हैं महिला में, तो हम कहेंगे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। अब हमें क्यों चिंता करना है कि ये मैम? हाँ, यस मैम, व्हाट्स द स्टैंड फॉर्म ऑफ पीसीओएस? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, my slide is visible? Yes ma'am. Okay. हम कब आज हमें क्यों चिंता करनी है कि ये एक सीरियस बीमारी है? Because it's very common in reproductive age, it's ranging from 15 to 45 years of age, and very common endocrine disorder. और ये 5 to 10% young girl को और women को affect करता है. It's a very fast growing with change in the lifestyle and stress. It is very frequent, 20% infertility जो हमारे country में है, it is because of PCOS. And it is strongly associated with insulin resistance, and that causes diabetes and cardiovascular disorder and hypertension. मैं आगे आपसे discuss करूंगी what is insulin resistance. Everyone is requested to please mute yourself. So request to mute yourself and questions in the end, please. Thank you. अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगी कि इसके कॉज क्या हैं. एक्चुअली इसका क्लियर कट कोई कॉज अभी तक नहीं मिला है, बट nowadays we relate more with the lifestyle and diet and stress. जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, एक चेंज आता है, म्यूटेशन होता है जीन्स में CYP21, एंड इट रन्स आल्सो इन द फैमिली. अगर मदर को है तो डॉटर को भी होने के चांसेस होते हैं. तो अगर मदर को है ये कंप्लेन, तो शी शुड बी विजिलेंट कि उसकी डॉटर को भी हो सकता है. तो शुरू से ही वो विजिलेंट रहे कि इसकी डॉटर को ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और मेंस्ट्रुअल कब से, मेनार्की कब से शुरू हुआ, और इसके मेंसेस रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वेदर शी इज गेनिंग वेट और या मेल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है. अगर वो विजिलेंट रहेगी शुरू से, तो अर्ली स्टेज में ही इस डिजीज का आप उसको रोकथाम कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. और ओबेसिटी वन ऑफ द कॉज है, बिकॉज इट्स अ विशियस सर्कल. ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी ओबेसिटी होती है. और एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनिया, जिसमें इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और उसके कारण ये पीसीओएस की कंप्लेन होती है. अब हम ये देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं. सारी गर्ल्स में या फीमेल्स में सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं. किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो सिम्टम्स ऑफ ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, दैट मीन्स कि आपके एग्स तो बन रहे हैं लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहे हैं आपके यूट्रस में, तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन. और इसके कारण चूंकि एग रिलीज नहीं होता है, तो आपके मेंसेस या तो आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो बहुत दिनों पर आते हैं. और ये सिम्टम्स 87% गर्ल्स में पाया जाता है. दूसरा है कि 2-3 महीने तक मेंसेस नहीं आया, फिर 2-3 महीने के बाद बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हुई, और 26% तक हेवी ब्लीडिंग हो जाती है. तो 26% तक लेडीज जो है इस बीमारी से अफेक्टेड रहती हैं. एंड 20% जो फीमेल है वो इनफर्टिलिटी के थ्रू इस कंप्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं. देन हम ये देखेंगे कि सिम्टम, कुछ लेडीज में मेल हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज एंड्रोजन एक्सेस. तो उसके कारण उनमें हिर्सिटिज्म होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन देयर फेस एंड बॉडी, लार्ज थिक हेयर.
एंड एक्ने हो जाता है. एलोपेशिया, दैट इज कॉल्ड, एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर, फॉल ऑफ हेयर, एंड स्पेशली जो फ्रंट लाइन है जहाँ से मेल्स के बाल गिरते हैं, वो तो बॉलनेस होती है, उस एरिया से बाल उनके गिरने लगते हैं. देन सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो इंसुलिन का लेवल जब बढ़ जाता है आपके शरीर में, तो 2-3 कंप्लेन्स उसके कारण होती हैं. दैट इज मोर कॉमन इज ओबेसिटी. इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, उसके कारण फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है. तो पेट के चारों तरफ आपके जो है फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो ओबेसिटी होती है. एंड एक सिम्टम होता है दैट इज कॉल्ड एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स. एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स एक ऐसा सिम्टम है जिसमें कि स्किन की डार्कनिंग हो जाती है आपके नेप ऑफ द नेक पे या अंडर आर्म्स पे, या जितने भी स्किन फोल्ड्स हैं वहां पर थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स. मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है. अब देखिए, नॉर्मल डिसफंक्शन होता है अगर किसी लड़की का मेनार्की शुरू हुआ है तो 1 साल तक तो उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है. यू शुड बी विजिलेंट कि इरेगुलर पीरियड्स है, लेकिन वो विद इन 1 ईयर वो नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम अगर मेंसेस शुरू हो गया, लेकिन उसकी साइकिल्स 21 डेज की हो रही है या 45 डेज की हो रही है, तो यू शुड बी थिंक अबाउट इट कि कहीं पीसीओएस की कंप्लेंट्स तो नहीं इसको डेवलप होने वाली है. या पोस्ट मेनार्की 3 साल से ज्यादा हो रहा है, टिल पेरीमेनोपॉज, जब मेंसेस बंद होने का टाइम है, तब तक में भी फीमेल्स इस डिजीज से अफेक्ट हो सकती हैं. तो अगर आपकी साइकिल 21 डेज की है, लाइक शॉर्ट साइकिल्स हो रही हैं, या 35 डेज से ज्यादा की हो रही है, या आप ये मान लीजिए कि साल में आपके 8 to 9 साइकिल्स ही आ रहे हैं, लाइक आपके 12 महीने हैं तो 12 साइकिल्स होने चाहिए, लेकिन वो आपके 8 या 9 ही साइकिल्स आ रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे. और अगर किसी के मेंसेस 25 साल तक भी शुरू नहीं हुआ है, तो या आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो प्रॉपर है, दैट इज कॉल्ड थैलार्के, बट उसके 3 साल बाद भी आपके मेंसेस नहीं शुरू हो रहा है, तो यू शुड गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. और अगर आपके इरेगुलर साइकिल्स हैं और इस तरह से इरेगुलर साइकिल्स हैं केवल, और कोई दूसरे सिम्टम्स नहीं है, तो भी आपको पीसीओएस के गाइडलाइंस पे आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए एंड यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. ओलिगोएमिनोरिया होता है जिसमें मेंसेस कम होता है. एमिनोरिया मींस मेंसेस नहीं होता है और वो प्रीबर्टल एज तक नहीं होता है. इसमें क्या होता है कि ओवरीज की जो ओव्यूलेशन, चूंकि ओवरीज में नहीं होती, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. तो वो जब ओवरीज एग रिलीज नहीं होता है, तो हमारा एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका रिलीज नहीं होता है. तो प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज नहीं होने से एस्ट्रोजन, जो एक दूसरा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और उसके बढ़ने से यूट्रस में जो टिश्यू की लेयरिंग होती है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है. और चूंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ता है, तो मेंसेस नहीं होता है, बिकॉज उसके आने से ही मेंसेस होता है. तो एक तो मेंसेस नहीं होता है, और एस्ट्रोजन के लेवल होने से उसकी थिकनिंग होती जाती है. 2-3 महीने में जब वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है लेयर, तो अपने आप फट के ब्लीडिंग होती है. तो वो ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा हेवी होती है. तो इसमें महिला जो बहुत ज्यादा परेशान है, 2-3 महीने तो मेंसेस नहीं हुआ, फिर हुआ तो बहुत ज्यादा मेंसेस हो गया. तो ये इसीलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके कारण टिश्यू की थिकनिंग बहुत हो जाती है. तो इससे एनीमिया के चांसेस होते हैं, या और भी ज्यादा रिस्क हो जाते हैं, उसको लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हेवी ब्लीडिंग. एंड एस्ट्रोजन के ज्यादा बढ़ने से और कंटिन्यूअस उसके यूट्रस के जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको ज्यादा स्टिमुलेशन के कारण वो कार्सिनोमा भी हो सकता है, कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं. सो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं केवल और कोई दूसरे सिम्टम्स भी नहीं है, तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है. ये देखिए, अब जो मेल हार्मोन्स हैं बॉडी में, उसको एंड्रोजन कहते हैं. एंड्रोजन के ज्यादा होने से देखिए, हिर्सुटिज्म है जिसमें चेहरे पर आपके बहुत ज्यादा बाल, मुस्टैश, ये सब हो जाता है. एक्ने है, एक प्यूबर्टल एक्ने होता है जो प्यूबर्टी के एज में एक्ने होता है. एंड दूसरा है कि बिकॉज ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण होता है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट.
सो इसे हम हार्मोनली ही इसको ट्रीट कर पाते हैं। एंड तीसरी चीजें होती हैं बॉल्डनेस, जिसमें कि आपके बाल झड़ते हैं। तो ये एक आपके लिए पिक्चर है कि इस तरह के आपको पिक्चर मिलेगा अगर कोई पीसीओएस से अफेक्टेड है तो। अब हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कहा जाता है कि ओबेसिटी से कनेक्टेड नहीं है, बट कुछ का कहना है कि इट इज रिलेटेड विद ओबेसिटी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इंसुलिन पैदा तो होता है, पैनक्रियाज इसको रिलीज करती है, लेकिन इंसुलिन सेल्स पर एक्ट नहीं कर पाती। तो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना, लेकिन वो ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा नहीं पाता है और उस पर फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इधर इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, दूसरी तरफ ग्लूकोज का भी लेवल बढ़ गया। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के कारण वो फैट डिपोजिशन को बढ़ाता है। और इसके कारण चूंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो 30 से 40% लेडीज में ग्लूकोज इंटॉलरेंस की कंप्लेन हो जाती है। और धीरे धीरे ग्लूकोज इंटॉलरेंस कंप्लेन होते होते दे डेवलप फाइनली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड अगर इसको कंट्रोल टाइम पे नहीं किया गया तो फाइनली ये बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट अपने दिखाते हैं। ये देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो स्किन में चेंजेस आते हैं, इसको कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो किसी भी महिला को अगर इस तरह के स्किन चेंजेस हो रहे हैं, और मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह के स्किन के चेंजेस अपने आप होने लगे, तो इट इज अलार्मिंग। आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए एंड कंप्लीट चेकअप कराइए कि कहीं आप पीसीओएस के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इसमें एपिडर्मल थिकनिंग हो जाती है एंड ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन हो जाता है। देखिए, अंडर आर्म्स में भी या जितने भी स्किन फोल्ड्स होते हैं उसमें भी थिकनिंग और डार्कनिंग ऑफ द स्किन होता है। अब देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, डायबिटीज हो जाता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कहते हैं। फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, पीसीओएस भी इसके कारण होता है। देन जो आर्टरीज है उसकी फंक्शंस सही से नहीं होती हैं। देन एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जो मैंने आपको अभी बताया वो हो जाता है। देन कोएगुलेशंस को भी, जो बॉडी में जो ब्लड के जमने की जो होता है सिस्टम, उसको भी ये अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट। देन डिसलिपिडीमिया मीन्स जो लिपिड्स जो हैं आपके, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स, उनके लेवल को भी ये इम्बैलेंस कर देता है। देन और इनके लेवल के इम्बैलेंस होने से जो हमारी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उनमें ये फैट का डिपोजिशन करा देता है, जिसके कारण कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कि ओबेसिटी सबसे ज्यादा आजकल जो एपिडेमिक हो चुका है यंग गर्ल्स में और लेडीज में। तो ओबेसिटी के कारण भी डायबिटीज हो जाता है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है, कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर भी उसके कारण होता है। बहुत सारी औरतों को ओबेसिटी के कारण डिप्रेशन हो जाता है। देन हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लिवर डिजीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पीसीओएस, जो कि हमें बहुत समझना होगा उसके बारे में, और उसका इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में भी बताया कि लॉन्ग टर्म रिस्क इसके वही हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। और इसके कारण अगर फीमेल इससे अफेक्टेड है तो प्रेगनेंसी लॉस भी होता है इसके कारण। एंड ओवेरियन फेलियर में जा सकती है अगर सर्जरी कराते हैं हम इसकी, तो स्कारिंग भी होती है उसके साइड इफेक्ट से, उससे ओवेरियन फेलियर, परमानेंट ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट से थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाना चाहूंगी कि आप एक ओवरऑल इसका वो देखिए फ्लो चार्ट कि ये इसके कॉज क्या है। जेनेटिक कॉज है, लाइफस्टाइल है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, हार्मोनल चेंज कर देते हैं। उसके कारण एंड्रोजन का लेवल, हमारा एंड्रोजन दैट इज मेल हार्मोन, वो बढ़ जाता है।
इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन जो है इन टर्न ओवेरियन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है और हिर्सुटिज्म एंड एक्ने को बढ़ाता है, और ओवेरियन फॉलिकल एनओव्यूलेशंस होता है तो उसके कारण मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इंसुलिन बढ़ता है तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें होती हैं इसके कारण। मैं ये आपको फ्लो चार्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि पहले आप इसका कॉज समझें कि ये कॉज क्या है इसका, और इसके कारण क्या क्या हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। अब अगर हमें आपको ये समझ में आ रहा है कि हम इस बीमारी से अफेक्टेड हैं, तो अब व्हाट नेक्स्ट, हमें अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो है कि आप सेल्फ मेडिकेशन, आपको कुछ नहीं करना है कि कहीं से कुछ पढ़ लिया तो खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, दैट इज वेरी रॉन्ग। सेल्फ मेडिकेशन आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट मेडिकेशन, कि इंटरनेट पे पढ़ लिया और चलो ट्रीटमेंट शुरू कर दो, इससे फायदा हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम तब जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं आप में, तो आप अर्ली उसको आइडेंटिफाई करें और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये इट्स ए कंबाइन ट्रीटमेंट होता है। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने गायनिक को ही अप्रोच करें। तो अगर आप गायनिक के पास जाएंगे तो वो आपको ओवरऑल इवेलुएट करेगी, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगी, सिम्टम्स, मेडिकल, फैमिली हिस्ट्री, देन बहुत तरह के टेस्ट होते हैं इसके लिए, देन इट मेक्स अ डायग्नोसिस। कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं है या कोई भी एक सिंगल सिम्टम्स नहीं है जिससे कि हम ये बता दें कि ये पीसीओएस की ही पेशेंट है। तो सबसे पहले तो पेल्विक एग्जामिनेशन, जो गायनिक आपकी पर एब्डोमेन एंड पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि हम रूल आउट करते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं हो रहा है या कोई दूसरी ग्रोथ या एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, बिकॉज दूसरे तरह के ट्यूमर्स, जो ओवेरियन ट्यूमर होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर होते हैं, उनके कारण भी ये सिम्टम्स होते हैं। तो हमें ये रूल आउट करना पड़ेगा कि और कोई दूसरे सिम्टम्स तो नहीं है। देन सेकेंड आता है हमारा कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन। जो रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन होता है वो तो करना ही होता है, लाइक सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड कंप्लीट ब्लड चेकअप। ब्लड प्लस उसके अलावा जो पीसीओएस के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो हम इसमें कराते हैं। कुछ टेस्ट हम कराते हैं जस्ट टू रूल आउट कि जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है, जो मेल हार्मोन रिलीज करता है, वो किडनी के ऊपर होता है, उसके ट्यूमर से भी मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो कहीं वो तो नहीं है। देन उसके कारण तो सिम्टम्स नहीं हो रहा है। एक दूसरी डिजीज होती है एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। तो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के कारण भी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और उसके कारण भी ये पीसीओएस की कंप्लेन होती है। तो हमें बहुत सारी चीजें रूल आउट भी करनी होती हैं बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल टेस्ट कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन है जो मेल हार्मोन्स होता है, उनका लेवल पीसीओएस में बढ़ जाता है। तो अगर इसका लेवल पीसीओएस में इसका लेवल अगर 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक हो जाता है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये पीसीओएस हो सकता है। बट अगर ये 200 तक इसका नैनोग्राम पर डेसीलीटर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो सकता है कि कोई एड्रेनल ट्यूमर हो या एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो। देन एक दूसरी टेस्ट होती है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कि सेक्स हार्मोन्स को बाइंड करता है। इसका लेवल कम हो जाता है, तो ये सेक्स हार्मोन्स को बाइंड नहीं कर पाता, जो मेल सेक्स हार्मोन्स है उनको बाइंड नहीं कर पाता, इसलिए इनका सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो इनका लेवल पीसीओएस में कम हो जाता है। देन एंटी मुलेरियन हार्मोन्स भी हम टेस्ट कराते हैं, इनका लेवल भी इसमें बढ़ जाता है। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन्स है, वो इसमें कम हो जाती है, या तो नॉर्मल भी हो सकती है, सब में जरूरी नहीं है कि सब में कमी हो, नॉर्मल भी हो सकती है या कम हो जाएंगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड अगर हम रेशियो निकालें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज टू एफएसएच, तो 2:1 का अगर रेशियो हमको मिलता है तो इट्स मोर इंडिकेटिव ऑफ पीसीओएस। देन एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। एक 2-3 और टेस्ट होते हैं, लाइक डाईहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेनिडियोन, दैट इज कॉल्ड DHEAS, इसका लेवल बढ़ जाता है, ये मेल हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोस्टेनिडियोन ये भी मेल हार्मोन है, इसका भी लेवल बढ़ जाता है।
तो ये सारे लेबोरेटरी टेस्ट हमें कराने होते हैं जस्ट टू रूल आउट द PCOS. अब हमें हाइपर इंसुलिमिया, दैट इज कॉल्ड, हाइपर मीन्स ज्यादा, इंसुलिमिया मीन्स इंसुलिन हार्मोन का लेवल. तो हाइपर इंसुलिमिया जो है हमें रूल आउट करना होता है, और इसे रूल आउट करने के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं. इसमें हम फास्टिंग एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं. फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 110 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है. तो इट्स अलार्मिंग कि आप या तो डायबिटीज डेवलप हो रहा है आपको, या PCOS डेवलप हो रहा है. और अगर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर आपका 140 to 200 तक, अगर आपका जाता है आफ्टर 75 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज खिलाने के बाद, तो बहुत ज्यादा इंडिकेटिव है कि आप या तो यू आर डेवलपिंग डायबिटीज और यू आर डेवलपिंग PCOS, एंड बिकॉज ऑफ दैट PCOS आपको शुगर की प्रॉब्लम हो रही है. देन अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल अगर हम करते हैं और उनका जो रेशियो निकालते हैं, अगर वो 4.5 तक आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको PCOS डेवलप हो रहा है. एंड दिस टेस्ट इज 90% सेंसिटिव. हम दूसरे भी टेस्ट कराते हैं जस्ट रूल आउट, बिकॉज थायराइड का भी अगर लेवल बढ़ता है, थायराइड का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलते हैं. आपको एमिनोरिया होता है या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उसके लिए हम TSH का टेस्ट कराते हैं, और T3 T4 TSH, दैट इज कॉल्ड थायराइड फंक्शन टेस्ट, वो हम कराते हैं. देन कॉर्टिसोल का टेस्ट कराते हैं जस्ट टू रूल आउट. एक कुशिंग सिंड्रोम भी एक इस तरह की ही बीमारी होती है जिसमें ओबेसिटी हो जाता है और मेल पैटर्न ऑफ हेयर हो जाता है चेहरे पे, तो उसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं. उसको भी हमें रूल आउट करना होता है. देन और भी 2-3 टेस्ट होते हैं, लाइक 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, उनका टेस्ट कराते हैं. और अगर किसी भी लेडी को एमेनोरिया हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया. तो प्रेगनेंसी तो सबसे पहले ही रूल आउट करना है हमें कि प्रेगनेंसी तो नहीं है. एंड एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, उसका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. अब सारे टेस्ट के साथ जब हम कुछ और टेस्ट करते हैं, लाइक अगर किसी भी महिला का वेस्ट सर्कमफेरेंस मोर देन 35 इंच हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड एक 150 से ज्यादा हो रहा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल वो 50 से कम है, और ब्लड प्रेशर 150 to 85 90 जा रहा है, फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज्यादा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इंडिकेटिव है कि आइदर शी इज डेवलपिंग हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज और डायबिटीज और PCOS, and because of PCOS she is developing all these complications. ग्लूकोज को चेक करने के लिए हम फास्टिंग PP तो कराते ही हैं ग्लूकोज का. एक दूसरा टेस्ट होता है HbA1c, उसकी स्क्रीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब कुछ नॉन लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड हम बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसके लिए. एब्डोमिनल भी होता है, TVS भी होता है, जिसमें हम वेजाइना के अंदर प्रॉब डालकर और टेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि यूट्रस की कैसी कंडीशन है, और ट्यूब्स की कैसी कंडीशन है, और ओवरीज की कैसी कंडीशन है. तो PCOS में ओवरीज का साइज जो है वो बढ़ जाता है और एनलार्ज हो जाता है साइज उसका, और जो सिस्ट है उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं. नॉर्मली हर साइकिल में, एक नॉर्मल आम महिला में हर साइकिल में एक सिस्ट बनती है, वो रप्चर होती है और एग रिलीज हो जाता है. बट पॉलीसिस्टिक में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल्स बन जाते हैं, छोटे 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 ऐसे फॉलिकल्स बन जाते हैं, लेकिन एग रिलीज नहीं होता है. तो इस तरह का आपको वो दिखता है. और इस जो पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं पर्ल नेकलेस पैटर्न, जो एक मोती की माला की तरह वो पैटर्न नजर आता है अल्ट्रासाउंड में. तो अगर किसी ने मान लीजिए अल्ट्रासाउंड करा लिया और इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो इट इज अलार्मिंग कि आप फिर सारे टेस्ट कराएं जस्ट टू रूल आउट कि आपको PCOS तो नहीं डेवलप हो रहा है. अब अगर हमने ये समझ लिया कि सिम्टम्स क्या हैं और इसके टेस्ट क्या है, हाउ टू इवेलुएट, हाउ टू गो अबाउट दिस डिजीज, तो फिर अब मैं फोकस करूंगी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. पर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि
सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है आपको, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर एंड इसका ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, और अगर आप जितने जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराएंगे उतने ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि एडोलेसेंट में, अब ये जो ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कौन ले रहा है। अगर यंग गर्ल है, अनमैरिड यंग गर्ल है, एडोलेसेंट गर्ल है, तो उसके कंसर्न कुछ और होंगे। वो चाहेगी कि उसका ओबेसिटी कम हो जाए या एक्ने का ट्रीटमेंट ठीक हो जाए। पर अगर कोई मैरिड वुमेन है एंड शी वांट्स फर्टिलिटी, तो उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। तो फर्स्ट हम उसको लेंगे, एक एडोलेसेंट में पीसीओएस का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। और जो किसी भी यंग गर्ल के लिए सबसे ज्यादा उसको जो वरी करने वाली बात होती है वो है कि उसके चेहरे पर बाल आ रहे हैं, उसकी ओबेसिटी हो रही है, उसके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, और अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो फिर आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करेगा, कार्डियक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कार्डियक इश्यूज उसको डेवलप होंगे। उसके एक डिजीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें रात में आपको सांस आनी बंद हो जाती है, ये भी एक लॉन्ग टर्म उसका रिस्क होता है और मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यंग गर्ल में इसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि चूंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एटलीस्ट 6 मंथ्स तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। उसमें हमें क्या करना है, हमें वेट कम करना है, अपना डाइट मैनेजमेंट करना है, एंड देन अगर 6 मंथ्स के बाद भी अगर हमारा वेट कम नहीं हो पा रहा है, हार्मोनल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, आई मीन डाइट मैनेज नहीं हो पा रहा है, देन वी विल गो फॉर अ हार्मोनल ट्रीटमेंट। अब लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जाए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जो कि आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नजरअंदाज आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो आपको अपने बिजी शेड्यूल में से भी, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग या दूसरे और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको कैलोरी जो है आपको कट डाउन करनी पड़ेगी, कैलोरीज कट डाउन, लाइक 3500 टू 7000 पर वीक अगर आपको कैलोरी कट डाउन करनी है। पर फिर भी अगर आपको अपने से नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे कैलोरी कम करनी है, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू डाइटिशियन एंड शी विल मेक योर डाइट चार्ट। तो आपकी जो डाइट पैटर्न है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। आप फास्ट फूड को ना करें, ऑयली स्पाइसी फूड जो आजकल बर्गर एंड सारे जो इस तरह की बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है गर्ल्स में खाने का, तो ये इन सब चीजों को आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। एंड आप ऑर्गेनिक फूड लें, हेल्दी फूड लें और स्मॉल स्मॉल मील लें, दिन में 3-4 बार आप लें, और इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा इंसुलिन का लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, तो इससे भी ओबेसिटी कम होती है। और बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि आप अगर बहुत देर देर पे खाते हैं तो एकदम से आप बहुत तेज भूख लगती है, तो यंग गर्ल्स में क्रेविंग फॉर स्वीट, और स्पेशली पीसीओडी अगर आपको हो रहा है तो उसमें आपको क्रेविंग फॉर स्वीट के लिए बहुत ज्यादा रहता है कि मुझे मीठा खाना है। तो अगर आप छोटे छोटे मील्स लेंगे, लाइक सैलेड ले लिया, कभी फ्रूट्स खा लिया, कभी छाछ पी ली, दाल खा लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा लिया, थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहेंगे तो आपको बहुत तेज भूख नहीं लगेगी, और इससे भी आपका कैलोरी जो कट डाउन होगा, और इसमें आपके वेट को कम करने में हेल्प मिलेगा। अब खाने में क्या क्या कट करें, वैसे तो आपकी डाइटिशियंस आपको पूरा गाइड करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इन शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मोनोसैचुरेटेड फैट्स लाइक नट्स में होता है, आप नट्स को थोड़ा इंक्लूड करें अपनी डाइट में। लेकिन नट्स मतलब ये नहीं कि दिन भर नट्स खाते जा रहे हैं और उसके कारण ओबेसिटी हो गई। लाइक एक छोटी सी बाउल में, एक मुट्ठी या एक बाउल में आप मिक्सचर ऑफ नट्स आप ले सकते हैं, उनको सोक करिए, फिर उनको आप ले सकते हैं। और लो कार्बोहाइड्रेट, लो जीआई कार्बो, जीआई मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनसे कि शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ये जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं, रागी एंड दूसरे और जो ग्रेन्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, ज्वार बाजरा, और लेग्यूम्स में
जितनी तरह की दालें होती हैं, चना होता है, काबली चना होता है, इन सब चीज़ों को आप लें। इसमें जो है प्रोटीन, मतलब इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होने का मतलब ये होता है कि ये बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। इससे इंसुलिन का लेवल कम, मतलब धीरे से बढ़ता है, और कार्बोहाइड्रेट लेवल का भी, जो ग्लूकोज का लेवल है वो उसका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो इससे भी ओबेसिटी कम होती है, इससे कैलोरी भी कट डाउन होता है। देन हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पेशली जो स्पिनिच है, जितनी तरह की जो साग आती हैं वो आप खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर, रेड मीट को अवॉइड करना है आपको। और आप एग खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिश आप खा सकते हैं, सी फूड इज वेरी गुड, आप सी फूड खा सकते हैं। तो इन सब चीजों से, और बहुत ही बैलेंस तरीके से खाइए, बिकॉज वेट कम करने से ही 80% प्रॉब्लम्स तो वेट कम करने से ही हो जाता है। अब आपको विटामिन पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें B1, B2, B6, B5, B12 सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी आपको अपने डाइट में लेना है। और B2 जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सब चीजों को मेटाबोलाइज करता है, आपको एनर्जी देता है। B3 जो है आपके शुगर को लेवल को नॉर्मल रखता है। B5 जो है आपके वेट लॉस को कम करता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, और स्पेशली PCOS में क्या रोल है। B5 जो है वो हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है मेटाबोलाइज करने में। B6 जो है वो हार्मोनल बैलेंस बनाता है हमारे, और जो फर्टिलिटी के लिए यूजफुल है उनके हार्मोनल बैलेंस को बताता है। और जिंक जो और मैग्नीशियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो B2, B3, B6 ये सारी चीजें जो है थायराइड फंक्शंस को भी नॉर्मल करती हैं। तो थायराइड फंक्शन से भी इन टर्न आपके मेंसेस को रेगुलेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें आप जो है अपनी डाइट में लीजिए, और ये सारी जो बी कॉम्प्लेक्स है वो आपको हरी साग सब्जियां और फ्रूट्स, नट्स, एवोकाडो, ब्रोकली एंड हरी जो पल्सेस हैं उन सब में आपको मिलेगा। और अगर आप आप डाइट के साथ साथ थोड़ा सा आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अच्छी कंपनी की। आप बी कॉम्प्लेक्स ले लें, लाइक A to Z, या मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं जिसमें सारी मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम सारी इंक्लूडेड होती हैं। देन आप कैल्शियम जरूर लें। कैल्शियम आप टैबलेट लेना जरूरी नहीं है, आप इस तरह का फूड लें, लाइक डेयरी फूड है, और चिकन है, फिश है, एग है, मिल्क है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। उस तरह की डाइट्स को आप अपने खाने में इंक्लूड करें। नेचुरल खाना खाएं, ऑर्गेनिक फूड खाएं। कैल्शियम जो है हमें पता है, सबको पता है कि ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कैल्शियम जो है आपके ओवरीज के एग के मैच्योरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल डेवलपमेंट ओवरीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैल्शियम दोनों तरह से आपको देन विटामिन डी जो है, विटामिन डी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा धूप में निकलें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एंड प्लस विटामिन डी का रोल है कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है। देन आप जो है विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी का 60,000 कॉलीकैल्सिफेरॉल एक सैशे आता है, वो आप वीकली आप ले सकते हैं। उसके लिए आप पहले विटामिन डी का लेवल करा लें। मोस्टली इंडिया में 95% लेडीज में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो आप अपने विटामिन डी का लेवल टेस्ट कराएं। अगर कम है तो आप बिल्कुल जरूर इसका शुरू कर दें, विटामिन डी लेना, अपार्ट फ्रॉम योर डाइटरी जो आप इंटेक ले रहे हैं उसके अलावा। आपको खाने में जिंक का बढ़ाना है। मैं फिर वही कहूंगी कि जिंक जो है लोगों को पता नहीं होता है कि जिंक जो है वो ओबेसिटी को भी कम करती है, एक्ने में भी हेल्प करता है। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स जो है, मैग्नीशियम का भी बहुत ज्यादा रोल है PCOS में, तो मैग्नीशियम, जिंक, इन सब चीजों को आप अपने खाने में बढ़ाएं। और मैग्नीशियम का रोल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है PCOS में। और ये दोनों जो है, जिंक और मैग्नीशियम, ये सारी हरी पत्ती की साग सब्जियों में पाया जाता है।
इसमें नट्स में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, सी फूड है। तो आप इन सब को अगर कंज्यूम करेंगे तो आपको पीसीओएस में भी हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी महिला से मिलते हैं जिसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो मे बी शी इज द विक्टिम ऑफ एनी डिप्रेशन और एंजाइटी, तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री में जो भी जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो रूल आउट करेंगे कि कोई एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं है। इट्स अ विशियस सर्कल। पीसीओएस से एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन से भी पीसीओएस हो जाता है, बिकॉज डिप्रेशन एंड एंजाइटी से जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसके कारण इनको पीसीओएस होता है। तो एक साइकोथेरेपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर महिला जो है उससे कोई डिप्रेशन है या उससे कोई एंजाइटी है तो। ना अब हम कुछ मैं मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या मेडिसिन हम नॉर्मली यूज करते हैं। मैं मेडिसिन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये पता हो कि क्या क्या मेडिसिन होती हैं इस डिजीज के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये मेडिसिन खुद से लेकर और खाना शुरू कर दें। और मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अगर ये कंफर्म हो जाता है सारे टेस्ट से कि शी इज द पेशेंट ऑफ पीसीओएस, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज, तो मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर उसकी इरेगुलर पीरियड्स हैं और हाइपर इंसुलिमिया है या हिर्सुटिज्म हो रहा है तो मेटफॉर्मिन हम शुरू करते हैं। ये आपके साइकिल्स को रेगुलेट करती है और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को भी बढ़ाती है। ये बेसिकली जो है मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसे हम पीसीओएस में भी यूज करते हैं, और ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती है, डायबिटीज को इम्प्रूव करती है, कार्डियक जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव करती है, और ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे शरीर में उसको कम करती है, और ग्लूकोज का जो इनटेक है, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ रहा है उसके अपटेक को भी बढ़ाती है। और इसके कारण जो हमारे बॉडी में लिपिड का लेवल इम्बैलेंस सा हो जाता है उसको भी ये रेगुलाइज करती है। तो इसका काफी ज्यादा इफेक्ट है। तो ओबेसिटी इस मेडिसिन के शुरू करने के बाद ये काफी इससे वेट भी कम हो जाता है, लेकिन इससे वेट कम करने के लिए ये मेडिसिन आप खुद से बिल्कुल नहीं लेंगे, बट इससे वेट इसके साइड जो इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि इससे वेट भी कम हो जाता है और हाइपर इंसुलिनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कम होते हैं। मेटफॉर्मिन से ओव्यूलेशंस भी ओव्यूलेशन भी शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट को नॉर्मल साइकिल्स आने लगते हैं। और अगर हम इसके साथ एक दूसरी मेडिसिन होती है एन-एसिटाइलसिस्टीन, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, वो भी अगर हम साथ में लें तो आपका ओव्यूलेशन नॉर्मल हो जाता है। तो काफी हद तक 50% हम कहेंगे कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं या मेडिसिन आप देते हैं तो आपका ये काफी हद तक आपके ये चेंजेस आ जाते हैं। मेटफॉर्मिन का डोज क्या होगा? मेटफॉर्मिन का डोज होगा हम लो डोज से शुरू करते हैं बिकॉज इसके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम 1500 to 1800 मिलीग्राम पर डे से शुरू करते हैं इसको। 500 की टैबलेट्स आती है, 850 की आती है, 1000 की आती है, तो हम इनसे शुरू करते हैं और इसको हम डिनर के साथ लेते हैं और धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाते हैं बिकॉज इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक नौशिया हो सकता है आपको, इसके कारण वॉमिटिंग हो सकता है। तो फिर इनको कवर अप करने के लिए, डाइजेशन है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो इनको कवर अप करने के लिए हम साथ में पैंडी जो एसिडिटी के लिए मेडिसिन होती हैं या नौशिया को कंट्रोल करने की मेडिसिन होती है वो हम इनको साथ में देते हैं। देन ये अगर किसी पेशेंट को कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम है या रीनल किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ सेप्सिस है तो या उसका कोई प्रोसीजर होने जा रहा है तो ये मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए। वो तो खैर आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगी कि आपको ये मेडिसिन नहीं लेना है जब शी विल टेक योर द फुल हिस्ट्री।
देन अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है, मेटफॉर्मिन से अगर आपका ओवुलेशन नहीं कंट्रोल होता है, देन हम यंग गर्ल्स में जिनको अपनी प्रेगनेंसी जिनको अपनी मेंसेस को रेगुलाइज करना है, तो उनको हम कंबाइन ओरल पिल्स देते हैं. एंड कंबाइन ओरल पिल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसको कि हम साइक्लिकली देते हैं. और ये 5th डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होता है. और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनको हम कहते हैं, और इनको हम देना शुरू करते हैं. इससे हिर्सिटिज्म, एक्ने, एक्स्ट्रा वेट की कंप्लेन कम होती है. देन कुछ लोग इन प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं, लाइक 10 डेज का प्रोजेस्टेरॉन देते हैं फ्रॉम 14th डे टू 10th डे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के. और फिर विथड्रॉल ब्लीडिंग भी कराते हैं. तो आप या तो कंबाइन पिल दे सकते हैं या प्रोजेस्टेरॉन के प्रिपरेशंस दे सकते हैं. आप दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं. अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के क्या फायदे होते हैं? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है. अगर मेटफॉर्मिन से आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं है, तो अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड है तब हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. तो यंग गर्ल जो कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, उनके लिए ये हार्मोनल ट्रीटमेंट स्पेशली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इससे जो LH हार्मोन जो मैंने आपको बताया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और एंड्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है. और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको मैंने आपको बताया था, उसका लेवल भी कम होता है. टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसके कारण कम हो जाता है. एंड्रोजन का लेवल इसके कारण कम हो जाता है. और विथड्रॉल ब्लीडिंग जो रेगुलर इस मेडिसिन के कारण जो मेंसेस आता है, उसको वो रेगुलाइज करती है. और धीरे 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 क्योंकि दूसरे हार्मोन्स जो मेल हार्मोन्स का लेवल कम होने से अपने आप ही फिर बॉडी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन करने लगती है. अगर हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज से के साथ लेते हैं, तो ये काफी अच्छा अफेक्ट करती है. और ये जो है कंबाइन ओरल पिल्स जो है, वो आपके एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, उसको भी कंट्रोल करती है. बिकॉज कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन के कारण, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं, वो भी कम होते हैं. प्रोजेस्टेरॉन का भी ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बताया, उसका नाम है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हमें 10 दिन तक देते हैं. 14th डे से हम इसे शुरू करते हैं. अब नेक्स्ट कंसर्न है कि हिर्सिटिज्म, अगर किसी भी लड़की या महिला को हिर्सिटिज्म हो गया है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे मेडिकेशंस आ गए हैं इसके लिए. तो पहले तो हम उनको वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज उनको अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करने के लिए कहते हैं. देन मेटफॉर्मिन, ओरल कंबाइंड पिल्स, ये सारी चीज़ें हम उनको सजेस्ट करते हैं. पर अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हम स्पेशली हिर्सिटिज्म के लिए ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो 2 मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज स्पाइरोलैक्टोन एंड क्रिम्सन 35. स्पाइरोलैक्टोन भी है, वो एंड्रोजन के लेवल को कम करता है और इनके प्रोडक्शन को भी कम करता है. लेकिन इनके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो साइड इफेक्ट्स से आपको घबराना नहीं है. मैं आपको साइड इफेक्ट्स भी थोड़े इसलिए बता रही हूँ कि हर मेडिसिन के थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसका क्योर होता है, तो वो साथ में आपको आपके डॉक्टर साथ में उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेडिसिन आपको देंगे. देन क्रिम्सन 35 है, ये कॉम्बिनेशन ड्रग होता है इथेनाइल एस्ट्रेडियोल एंड साइप्रोटेरेन एसिटेट. ये भी आपके लेवल एंड्रोजन के लेवल को कम करता है. और ये भी इट एक्ट्स एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव. तो अगर आप ये ले रहे हैं क्रिम्सन 35, तो फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप ले रहे हैं, तो वो आप नहीं लेंगे, बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक स्टमक एक हो गया, एसिडिटी हो गई, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, और वेट गेन कभी कभी हो जाता है इसके कारण, और हेडेक भी हो सकता है. तो आपको मेडिसिन डिसकंटिन्यू नहीं करनी है. आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, देन दे विल गिव यू मेडिसिन फॉर, अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो पेन किलर के साथ का 5 days 10 days का आपको थेरेपी देंगे, तो यू विल गेट रिलीव ऑफ योर सिम्टम्स. और अगर
हिर्सिटिज्म जो है, इन सारी कोशिशों के बावजूद अगर फिर भी नहीं हो रहा है, लाइक आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर लिया, वेट कम भी कर लिया और फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ले लिया, फिर भी अगर नहीं आपका हेयर ग्रोथ कम हो रहा है, तो भी ज्यादा चिंता की बात नहीं है. You can consult cosmetologist और endocrinologist and cosmetically भी आप इसको treat करवा सकते हैं, like chemical debilitating agents होते हैं, bleaching होती है, vaccine technique होता है जो कि ladies को पता ही है, फिर कुछ cream होती है that is called Vaniqua cream, वो unwanted hair को, facial hair को remove कर देती है. देन वो जो है धीरे 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 हेयर ग्रोथ को भी कम करती है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और काफी लंबे समय तक इसको यूज करना पड़ता है, लेकिन इसको यूज करते रहना पड़ता है. और फिर लेजर थेरेपी बहुत तरह की होती है आजकल, बहुत अच्छी अच्छी लेजर थेरेपी आ गई है. यू कैन कंसल्ट स्पेशलिस्ट फॉर लेजर थेरेपी, जिससे कि आपके बाल, जो चेहरे के बाल हैं या जहाँ की भी अनवांटेड हेयर है, वो आप उनको रिमूव कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग मेथड होता है जिसके कारण आपका हेयर रिमूव होता है. इट्स अ एक्सपेंसिव थेरेपी, बट ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि आप इस प्रॉब्लम से आपको आप इससे प्रॉब्लम से निकल सकते हैं. तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है. आजकल काफी इन्वेंशंस हो गए हैं और काफी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं. तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि हताश होने की जरूरत नहीं है. ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर तो जरूर है, लेकिन इसका इलाज भी है. अब हम तीसरी चीजें देखते हैं कि अगर यंग गर्ल है और इनफर्टिलिटी की कंप्लेन है उसको, फिर हम वही समझाऊंगी मैं कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे उनको. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइटरी एंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा, आइदर साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, डाइटिशियन को कंसल्ट करिए, और किसी भी तरह से आपको अपना वेट कम करना है. देन इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए. फिर 2-3 मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज क्लोमिफेन साइट्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिन होता है. एंड इनसे भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम लेप्रोस्कोपिकली ही देखते हैं अंदर की किस तरह के हैं. और एक्स्ट्रा सिस्ट जो होता है उनको हम रप्चर भी करते हैं, तो वो फिर बाद की स्टेज हो जाती है. फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड यूट्राइन इंसेमिनेशन भी होता है. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक जो हम इनफर्टिलिटी में डिस्कस कर सकते हैं इन सब टॉपिक्स को. और लास्ट में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लास्ट हमारा वो रहता है ऑप्शन. तो अब हम इनफर्टिलिटी के जो 2 मेन ट्रीटमेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ. फिर मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है. दिस डिस्कशन इज ओनली फॉर योर नॉलेज, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़े. दिस इज नॉट फॉर कंसल्टेशन. आपको अपने से मेडिसिन नहीं लेनी है बिना अपनी पूरी चेकअप कराए, बिना पूरी जांच कराए. तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम देखेंगे क्लोमिड आता है. क्लोमिड करके एक टैबलेट होती है जिसको हम शॉर्ट डोज से शुरू करते हैं 50 से, और 2 to 6 मंथ्स तक हम ट्राई करते हैं. ये जो आपके सिस्ट होते हैं उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं और एग को रिलीज करने में हेल्प करते हैं. और मोस्टली ये रिस्पॉन्ड कर जाती है. 80% तो ओव्यूलेट कर जाती हैं और 50% कंसीव भी कर जाती हैं इस ट्रीटमेंट से. और अगर हम इसको मेटफॉर्मिन के साथ देते हैं तो इसका और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है. और दूसरा टैबलेट जो हम ज्यादातर यूज करते हैं दैट इज लेट्रोजोल. तो लेट्रोजोल फेमरा के नाम से मेडिसिन आती है मार्केट में, और इसको भी हम लो डोज से शुरू करते हैं 2.5, देन 5 मिलीग्राम एंड देन 7.5 मिलीग्राम. एंड ये भी आपके लोकल जो ओवरीज हैं उनके फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, एफएसएच के लेवल को बढ़ाता है. बट इससे थोड़े से साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है एज कम्पेयर टू क्लोमिफेन. बट आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है शी विल डिसाइड कि आपके लिए कौन सा मेडिसिन बेटर होगा, आपके साथ और क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपके और क्या हेल्थ इश्यूज हैं, एंड देन शी विल डिसाइड कि आपको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है. ये गोनाडोट्रोपिन्स है, ये भी एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है. इससे भी हम लो डोज से शुरू करते हैं और ओवरऑल हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं
हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, लो डोज से शुरू करते हैं, फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं. इट्स अ वेरी बिग टॉपिक जो कि आप इनफर्टिलिटी में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इसको. तो बट मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस लेडीज को भी जो प्रेगनेंसी चाहती हैं, अगर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकार हैं, तो ये सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल हैं. वो अपने गायनेक को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं. और उसके साथ आपकी गायनिक आपको बहुत सारे एडजुवेंट जो आपके एडिशनल जो ट्रीटमेंट है वो दे सकती हैं. उनके मैं नाम बस मेंशन कर देती हूँ. मेलाटोनिन है, एंड एसिटाइलसिस्टीन है, मायो एनासेटोल है. ये सारी प्रिपरेशंस मार्केट में हैं जो कि आपके सिम्टम्स को और जो आपके कंप्लेंट्स हैं उनको कम करती हैं. अल्फा कैल्सिडॉल है, क्रोमियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एल मिथाइल फोलेट है. और ये सारी चीजें जो हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी कम करती हैं, लिपिड्स के लेवल को इम्प्रूव करती हैं, वेट को कम करती हैं. एंड फाइनली अगर इन सब चीजों से भी नहीं होता है कंट्रोल, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग करते हैं, कॉटराइजेशन करते हैं, हम सिस्ट को पंचर करते हैं. एंड इससे भी 50% जो है अफेक्टिव होता है. जो महिलाएं हैं वो कंसीव कर जाती हैं. बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक हर सर्जिकल प्रोसीजर का साइड इफेक्ट होता है, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो लास्ट में ये IVF है जो अगर इन सब सारी सिस्टम्स फेल हो जाती हैं तो IVF इज द लास्ट ऑप्शन फॉर प्रेगनेंसी. तो देखिए ये ओवरऑल एक चार्ट बनाया है मैंने जिसमें कि इसके कॉज और उसके ट्रीटमेंट को हम देख रहे हैं. तो ओबेसिटी हो गई, उसके वो भी हम ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका कि ये फ्लो चार्ट है आपके पास कि ओबेसिटी से ओबेसिटी हो गई, इनफर्टिलिटी इसका जो है सिम्टम है, इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग है, रिकरेंट एबॉर्शंस हैं, हिर्सुटिज्म है. तो ओबेसिटी भी आप किससे करेंगे कंट्रोल? एक मैं आपको ओवरऑल एक रिवीजन करा दी हूँ एक तरह से कि ओबेसिटी आपको अपनी डाइट से कंट्रोल करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है. आप जिस भी तरह के एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड हैं, जिम ज्वाइन कर लीजिए. फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, और फिर कॉस्मेटिक सर्जरी. इनफर्टिलिटी जो है उसके भी क्लोमिफेन साइट्रेट है. तो आप एक ओवरऑल देख लीजिए, रिपीट करने का दोबारा से फायदा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम सब चीजें कर चुके हैं इनको डिस्कस. तो ये लाइफ ये PCOS हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिसिन से. बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग जो हमारे कोशिश है वो होती है. अगर आप इसको छोड़ेंगे तो फिर से ये आपको वापस से डेवलप हो सकती है. तो आपको ये लाइफस्टाइल में अपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आपको ये शामिल करना पड़ेगा. तो इसके साथ मैं अपना ये लेक्चर अब यहीं पे क्लोज करती हूँ. आशा है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली होगी. थैंक यू. Thank you, Dr. Anjana Khare, for this session. We all have learned a lot and had a great time. I now request the audience to write their queries in the chat box. ये पढ़ू मैं यहाँ से. श्रेया ने पूछा है कि मैम मुझे वाइट हेयर प्रॉब्लम है और तो PCOD इसका रीजन हो सकता है. जरूरी नहीं है PCOD में वाइट हेयर के नहीं होते हैं सिम्टम्स. इट इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि वाइट हेयर क्यों हो रहा है. बेसिकली डाइटरी जो इन डेफिशिएंसी होती है उसके कारण वाइट हेयर होता है.
और जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में जल्दी वाइट हेयर होने के चांसेस होते हैं तो आपको भी वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट वाइट हेयर इज बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, नॉट अ साइन ऑफ पीसीओएस. बट अगर और भी दूसरी इरेगुलरिटीज हैं आपको, लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, या जैसा मैंने बताया ओबेसिटी है, या हिर्सिटिज्म की प्रॉब्लम है, देन यू शुड कंसिडर इट एज अ पीसीओडी. नेहा ने पूछा है कि हाउ ओसीपीज प्रिवेंट ovulation and how do they solve the problem in the cyst in the ovary. जैसा कि मैंने बताया कि जो हम OCPs लेते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हम बढ़ा देते हैं. बढ़ाने से ये क्या होता है कि जो हम दूसरे हार्मोन से FSH LH का लेवल हम उनको फीडबैक में हम उनको कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण कि हमारी जो मेंसेस हैं वो रेगुलाइज हो जाती हैं. प्रोजेस्टेरॉन के कारण हमारी थिकनिंग हो जाती है, और उसके विथड्रॉल से, लाइक प्रोजेस्टेरॉन के विथड्रॉल से ही हमें मेंसेस होता है, क्योंकि हम ओसीपीज में प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं और जब हम बाद में उसे बंद करते हैं तो उससे विथड्रॉल ब्लीडिंग होती है, और फिर उसके कारण हमारा मेंसेस होता है. और बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ दिस तो हम ओव्यूलेट नहीं करते हैं, और इससे हम प्रेगनेंसी से भी बचते हैं. ऐश्वर्या ने पूछा है कि मैम आई एम फीलिंग नॉशियस व्हाइल मेंस्ट्रुएटिंग, इट इज ओके. देखिए, जब मेंसेस होता है तब हमारे हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, और मतलब बढ़ा होता है. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जब उनका लेवल घटता है तब मेंसेस होता है. तो ब्लड में इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, उसके पेरिस्टाल्सिस को भी थोड़ा इंप्रूव करती है, जिसके कारण पेन भी होता है, नौजिया भी हो सकता है. तो इट्स वेरी कॉमन कि आपको मेंसेस में नौजिया फील हो, तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट. अगर आपको ज्यादा होता है तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड आप मॉर्निंग में खाली पेट आप पैंडी ले सकती हैं, जिससे कि आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और नौजिया वॉमिटिंग भी कंट्रोल होगा. तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉमन. श्रेया विज ने पूछा है कि मैम मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम है और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे 1 मेडिसिन दिया है एंड रेगुलर एक्सरसाइज के लिए दिया है. हाँ, बिल्कुल सही है. अगर आपकी पहले तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट पे पूरा ट्रस्ट करें, क्योंकि एक एक मेडिसिन से ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. वी डोंट जम्प विथ लॉट्स ऑफ मेडिसिन. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको, अगर आपका वेट नहीं बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है. वेट नहीं भी बढ़ा है तो भी आपको एक्सरसाइज आपको करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज से भी आपके बहुत सारे हार्मोनल लेवल्स जो है वो बराबर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे कि आपका रेगुलेट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं. एंड अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो ओव्यूलेशन भी होता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है. तो उन्होंने बिल्कुल सही दिया है. आप शुरू करें, आप अपनी चीजों को फॉलो करें. You will definitely improve with your symptoms. अमृता ने पूछा है कि मैम my period is regular but it just have it for 2 days maximum and the bleeding is also less. Somehow it is PCOS. देखिए, अगर आपके मेंसेस रेगुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस है वो तो नॉर्मल है. अब कम होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक अगर आप एनेमिक हैं और जेनेटिक रीजन भी होता है, इट रन्स इन द फैमिली. अगर आपकी मदर को 2 दिन की ही मेंसेस होती है तो आपको भी 2 दिन का मेंसेस होगा, जेनेटिक भी होता है. बट अगर कम है तो पहले तो हम अपनी पैथोलॉजी को रूल आउट कर लें. आप अपना कंप्लीट ब्लड चेकअप कराएं, कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है आपका. तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी मेंसेस कम होता है.
तो अगर हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही है, फिर भी अगर 2 डेज की साइकिल हो रही है, अल्ट्रासाउंड कराएं. अगर अल्ट्रासाउंड में ओवरीज का साइज नॉर्मल है और बिफोर मेंस्ट्रुएशन अगर एंडोमेट्रियल थिकनिंग आपकी 10 मिलीमीटर की हो रही है, तो इट्स ओके कि आपको 2 दिन की ही मेंसेस होती है. तो लेकिन आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा, सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा. मे बी नॉर्मल और मे बी देयर इज सम पैथोलॉजी, वो आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन होम्योपैथिक वर्क्स इन पीसीओडी एंड थायराइड. देखिए, मैं तो एमबीबीएस एलोपैथी वाली डॉक्टर हूँ, सो आई कांट कमेंट ऑन होम्योपैथी बिकॉज होम्योपैथी एक अलग ही ब्रांच है. सो मैं उसके ऊपर कमेंट तो मैं नहीं कर सकती हूँ. वो भी फायदा कर सकता है तो वो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ही बताएंगे. मैं तो अपने ट्रीटमेंट्स और अपने जो हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ लाइफस्टाइल है उसके बारे में ही कमेंट कर सकती हूँ. यू कैन गो एंड हैव ट्रीटमेंट फ्रॉम होम्योपैथी. उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सब इम्पोर्टेंट है. तो होम्योपैथी के बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहती. मैं अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है. आई थिंक दिस द और बाकी जितने लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं मेल के थ्रू आपको रिप्लाई करना चाहूंगी बिकॉज आई थिंक टाइम भी अब ओवर हो रहा है. सो आई विल गेट बैक टू यू ऑन मेल. और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन. आई थिंक अब ये डिस्कशन हम यहीं बंद करते हैं. I would now request Dr. Poonam Sharma, President of Alumni Association, to deliver a vote of thanks. Good afternoon, everyone. Today's talk has been very informative and enlightening. We have so many youngsters and adult females around us who are suffering from PCOD. And Dr. Anjana Khare has given us so much knowledge about it because knowledge is the first step towards cure and healthy living. I'm deeply indebted and thankful to her. She's from Medanta Hospital, Lucknow, who has been kind enough to spare time from her busy schedule and share the valuable information with us. We have immensely benefited from it. I want to thank Dr. Shruti Bharti from FFD for collaborating today's webinar with us. Thank you, Professor Pal in absentia, for being a source of constant inspiration to the Alumni Association. Thanks to the organizing team, our office bearers, and executive body members for organizing this talk. Special thanks to JDMC computer team for providing and managing the official Zoom handle, because of which we could see approximately 300 participants at a point of time. And above all, thanks to all the participants who made it a successful webinar and also benefited from it a lot. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.